Hello students. So let's begin the next topic of our chapter 10, microbes in human welfare, and our next topic is microbes in production of biogas. Children, till now we have studied कि sewage treatment हमने पढ़ा कि how sewage water is treated and then it is allowed to throw into the water bodies. तो क्या होता है जब सीवेज का ट्रीटमेंट हो जाता है तो नाउ इट इज प्योर वाटर, almost pure, and it can be discharged into the river bodies. Now it is harmless. So related to that only our next topic is production of biogas. Now what is biogas and how it is produced? Let us understand this. So first of all, what is biogas? Biogas is a mixture of different gases. Mainly अभी हमने सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ा था कि बायोगैस प्रोड्यूस होती है एंड जो कंपोनेंट थे वो क्या थे? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. But the main component of biogas is methane. So we can see that mixture, biogas is a mixture of different gases and main component is methane. So when it is produced, how it is produced? It is produced by the microbial activity. That means microbes play a very important role in this. So what are the different microbes which are used in this? We will study this. Okay. And already we have studied the role of microbes in different sources. Now the main thing which was the main gas which was produced previously, we saw that carbon dioxide gas is produced, and in certain bacteria anaerobic also take place, anaerobic digestion takes place, that is जैसे कि cellulose material होता है तो cellulose को digest करना it is not possible in our body, but some animals जैसे जिनको ruminants कहते हैं उनमें cellulose का digestion possible है. तो जब सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है तब मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. तो वी शुड रिमेंबर दैट सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है चिल्ड्रन, फॉर दिस टॉपिक यू ओपन पेज नंबर 185. ठीक है, एवरीबडी शुड ओपन द बुक so that you can understand and underline all the important lines. So what we are going to see that methane, carbon dioxide and hydrogen gas, which are the main components of biogas. Now these bacteria are collectively called methanogens, means the bacteria which are responsible for the production of methane gas, that is biogas, are called methanogens. ठीक है, methanogens. And one such common bacterium is methanobacterium. Underline करेंगे इसको. Methanobacterium is the bacteria which help in production of methane gas. Now these bacteria are commonly found in anaerobic sludge. हमने सीवेज ट्रीटमेंट में देखा था anaerobic bacteria, anaerobic sludge में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट थे. एंड अदर देन दैट ये बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द rumen. rumen क्या है? जो हमारे काउ, बफेलो, ये जो एनिमल्स हैं ruminants कहते हैं जिनको, इनके स्टमक में ये प्रेजेंट होता है. rumen इज द पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ ruminants. तो वी नो दैट द कैटल क्या खाते हैं, जो भी खाते हैं उसमें सेल्यूलोज का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है. सो टू डाइजेस्ट दैट सेल्यूलोज, मिथेनोजन बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड दे कन्वर्ट द सेल्यूलोजिक मटीरियल इनटू मीथेन गैस. तो अ लॉट ऑफ सेल्यूलोजिक मटीरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो न्यूट्रिशन, कैटल में जब न्यूट्रिशन होता है तो फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज these bacteria help. अब हम जानते हैं कि जो excreta of cattle होता है which is known as cow dung, it is rich in these bacteria. ठीक है, तो जो cow dung को जब हम use करेंगे, we can use the cow dung for the production of biogas. So dung can be used for generation of biogas which is commonly called gobar gas. Now let us see how, what is the, मतलब कैसा, किस तरह का biogas plant कैसा होता है and how can we produce biogas. So let us see the plant of biogas plant. This is the diagram of biogas plant. You can see on page number 186. It is given in your book also. So this is we'll see how biogas is produced. Now as I told you, biogas is the mixture of mainly methane, carbon dioxide and hydrogen. अब आप इसमें देखिए एक लार्ज डाइजेस्टर होता है जिसमें जो स्लरी है, स्लरी इज व्हाट, जो पूरा काउ डंग या वेस्ट ऑफ कैटल्स है वो उसको यहाँ पे रखा जाता है. एंड दिस इज द
यहाँ से स्लज को, यहाँ से सारा जो स्लरी है उसको डालेंगे एंड इट इज केप्ट इन द डाइजेस्टर. नाउ देयर इज अ फ्लोटिंग लिड. यहाँ पे एक फ्लोटिंग लिड होता है जो कि डाइजेस्टर के ऊपर रखा जाएगा. जैसे एज द गैस इज प्रोड्यूस दिस लिड कीप्स ऑन राइजिंग, ये ऊपर 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 जाता जाएगा. अब एक आउटलेट है, आप देख सकते हो, देयर इज अ आउटलेट फॉर गैस. एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इट इज सेंट टू द अदर प्लेस फ्रॉम दिस आउटलेट. ठीक है, यहाँ से डंग एंड वाटर डाल दिया जाता है एंड दिस इज द डाइजेस्टर. यहाँ पे पूरा उनका डाइजेशन होता रहेगा विद एनाएरोबिक बैक्टीरिया एंड दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड. तो आप बुक में देखिए, जो द बायोगैस प्लांट इज अ कॉन्क्रीट, ये पूरा कॉन्क्रीट का बना होता है. ठीक है, 10 to 15 फीट इसकी डेप्थ होती है, 10 to 15 फीट डेप्थ है. एंड देन a lid is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity. तो जैसे जैसे माइक्रोब्स अपना काम करेंगे, ये जो इसका लिड है ये ऊपर जाता जाएगा. एंड बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट. दिस इज द आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेज. तो विलेजेस में जहाँ पे काउडंग की बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे बायोगैस प्लांट अच्छे से वर्क कर सकता है. तो द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू द आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. तो देखो गैस का तो यूज हो गया फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग द लैम्प. देन जो स्लरी क्या है, जो बच जाएगा, गैस तो रिमूव हो जाएगी ऊपर से, जो स्लरी बच जाती है दैट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. तो दिस कैन बी सक्सेसफुल इन रूरल एरियाज. जैसे विलेजेस में इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं. एंड इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. द पिक्चर आपको गिवन है, यू कैन स्टडी द पिक्चर. अब देखिए, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ, ये इंस्टीट्यूट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ठीक है, अंडरलाइन दीज इंस्टीट्यूशंस. तो दे फर्स्टली इन्होंने बायोगैस को स्टार्ट करवाया था, बायोगैस प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाया था. Then in your book you can write down one question. मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ which is already has come in the exams. On page number 186 जहाँ पे आपको बायोगैस प्लांट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सारा, वहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, हाउ बायोगैस इज जनरेटेड फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, एक तो ये हो गया. इसी के कंटिन्यूशन में राइट वन मोर पॉइंट, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस. सो यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ बायोगैस इज जनरेटेड फ्रॉम द स्लज and you have to write the components of the biogas. Okay, next topic जो है हमारा वो है microbes as biocontrol agents. So now we'll see how microbes play an important role in biocontrol agents. अब biocontrol agents क्या होता है, देखो बच्चों, as we know you can see page number 186. ठीक है, biocontrol means the biological methods for controlling plant diseases and pests. प्लांट डिजीजेज और पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो हम ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. ठीक है, तो यू कैन अंडरलाइन, बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट. तो ये तो रोल हुआ बायो कंट्रोल एजेंट्स का. नाउ हाउ दे वर्क. अब देखो क्या होता है, जो अभी हमारे अब तक के ट्रेडिशनल मेथड से कि हम क्या कर रहे हैं, कभी भी कोई प्लांट में डिजीज़ होती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो कि केमिकल्स हैं. एंड वी नो दैट दे आर वेरी टॉक्सिक. लेकिन टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम दीज डिजीजेज एंड पेस्ट्स वी हैव टू यूज़. बट इफ़ देयर इज अनदर मेथड, हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं है. इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स ऑल्सो या एनिमल्स के, किसी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं. तो वी शुड प्रेफर दीज मैथड्स. तो वी कैन प्रेफर बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट्स. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स वी कैन यूज दिस. तो ये हमारे लिए पूरी तरह से सेफ है और हमारा सॉइल पॉल्यूशन भी नहीं होगा. वीडिसाइड्स जो यूज करते हैं उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. Now biological control of pests and diseases कैसे होगा. तो in agricultural there is a method of controlling pests
which relies on natural predation. Now what is this natural predation? इसका ये मतलब होता है, हम जानते हैं predators क्या होते हैं, जो किसी न किसी को फूड बनाकर कंज्यूम करते हैं, वो predators हैं. तो we can use these predators in our farms instead of using chemicals. तो दिस विल क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर जिस इंसेक्ट को या जिस पेस्ट को हमें रिमूव करना है उसको कंज्यूम करने वाला अगर हम कोई हम किसी प्रीडेटर को लाते हैं तो दैट विल बी हार्मफुल टू ओनली दैट माइक्रोब. ठीक है. सो द ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स कैसे करते हैं, दे क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम कॉल्ड पेस्ट्स आर नॉट इरेडिकेटेड, मतलब इनको रिमूव नहीं करते हैं, बट इंस्टेड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल्स. उनको एक कांस्टेंट लेवल पे उनको आने दिया जाता है बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. तो एक सस्टेनेबिलिटी रहती है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कॉन्ट्ररी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जिसमें कि केमिकल मेथड्स हम यूज कर रहे थे. ठीक है. तो दिस मेथड विल बी टोटली एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड देयर विल बी नो पॉल्यूशन ऑफ इन एनी टाइप, और ये किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा. Now let us see. So this we can call as, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding between interaction between, देखो interaction between different flora and fauna, इनके बीच में ये काम करेगा. The organic farmers ये इस तरह से ही अपना वर्क करते हैं. तो इसके लिए क्या नॉलेज जरूरी है, एक तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको फीड करता है. तो वी शुड नो द प्रीडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट्स. ठीक है, which depend upon them as food or host. So the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on chemical, जो harmful chemicals हैं उनके ऊपर डिपेंड करने से हमें ये बचाएगा. So we should know the patterns of feeding, life cycle of different organisms and habitats. इस सब का नॉलेज होना जरूरी है इसके लिए. The very familiar, अब हम बात करते हैं कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनमें हम काम में ले सकते हैं. सो यू कैन सी लेडी बर्ड का आपने नाम सुना होगा. लेडी बर्ड जिसमें एक बीटल है जिसमें रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स होती हैं. ठीक है. द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, दे आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज. अंडरलाइन कर लीजिए इसको. लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड टू कंट्रोल एफिड्स एंड मॉस्किटोज. ठीक है. An example of microbial control agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillars. ठीक है. This is the second example. Butterfly caterpillars को control करने के लिए is the bacteria Bacillus thuringiensis. ये बहुत ही important bacteria है. ठीक है. ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी काम में आएगा. Remember this bacteria Bacillus thuringiensis. नाउ इन शॉर्ट इसको बीटी के नाम से जाना जाता है. ठीक है. बीटी आपको याद रहेगा, बट यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑल्सो. तो बीटी क्रॉप्स अभी आजकल ग्रो करवाई जाती हैं. एक्चुअली ये बीटी कैसे वर्क करता है, बैक्टीरिया जो है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, हाउ डज इट वर्क, पहले हम ये देख लेते हैं. इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द सैशेट्स. इसके पाउचेज आते हैं, सैशेट्स आते हैं, विच इज जैसे ड्राइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसको वाटर में डिजोल्व करके इसको स्प्रे कर दिया जाता है on the plants, vulnerable plants. That means जिन plants में इन microbes का infection होने के chances है, उन पे इसको spray कर दिया जाता है. ठीक है. such as brassicas and fruit trees, इनमें ज़्यादा infection के chances होते हैं. तो this is sprayed on these crops, these plants, and when these plants are eaten by the insect larvae. Actually insects की जो larvae होती हैं वो इस पे feed करना शुरू करते हैं. तो जैसे ही ये feed करते हैं तो इस इन बैक्टीरिया का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, वो लार्वा के गट में जाता है. गट मीन्स इंटेस्टाइन. तो ये बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं एंड द टॉक्सिन्स ऑफ दीज बैक्टीरिया विल एंटर इनटू द गट ऑफ द लार्वा. लार्वा के गट में जाएगा, वहाँ पे ये उनकी इंटेस्टाइन में पोर्स कर देते हैं, इंटेस्टाइन में होल्स कर देंगे. इंटेस्टाइन में होल्स हो जाएंगे तो द लार्वा विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ठीक है. तो टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड. तो दिस इज हाउ दिस बीटी वर्क्स. अब ये तो हमने ऊपर से डाला है, बट नाउ साइंटिस्ट हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड द क्रॉप्स. क्या किया है,
क्रॉप्स को जेनेटिक इंजीनियर की हेल्प से उनको ऐसा मॉडिफाइड कर दिया, उनकी जीन में ही ये बीटी इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो उससे क्या होता है, जो क्रॉप्स डेवलप होंगी दे विल बी डेवलप्ड एज डिजीज रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट हम कह सकते हैं। तो जब भी ये लार्वी अगेन इफ दे विल इन्फेक्ट या उनको उस पे प्लांट्स पे आएंगे तो दे विल ईट द प्लांट, एज दे विल ईट अगेन दिस टॉक्सिन विल बी रिलीज्ड एंड द लार्वा विल बी किल्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये बीटी वर्क करता है। बीटी कॉटन इज वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल, जो कि बीटी कॉटन की क्रॉप्स डेवलप करवाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ये जेनेटिकली मॉडिफाई करके। ठीक है, we'll learn in more detail in chapter 12 also. Then a biological control being developed in the use of in the treatment of plant disease. एक और जो माइक्रोब यूज होता है वो है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज क्या है, एक फ्री लिविंग फंगी है विच इज वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। दैट मीन्स इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द रूट्स। तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं and they are effective in biocontrol agents of several plant pathogens. So they will protect plant from pathogens. कौन? This trichoderma, ये एक फंगी के species है। Next we'll see baculovirus. Baculovirus are the pathogens that attack insects and other arthropods. So these are also microbes which are called as baculovirus. तो बैक्यूलोवायरस कैसे काम करता है देखते हैं। बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो इट विल अटैक इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस। आप इसको मार्क कीजिए, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बुक में देखिए पेज नंबर 187। ठीक है, What is the significance of nucleopolyhedrovirus? तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस ये कैसे वर्क करता है। लेट अस सी। These viruses are excellent candidates for species specific narrow spectrum insecticidal application. Means ये insecticide का काम करेगा, it will consume the insects या it will kill the insects. And second thing important कि इसका कोई negative impact नहीं होता है on other animals. It will only kill the particular type of bacteria. So these viruses are excellent for species specific, मतलब एक particular species को ही consume करेगा and it acts as insecticidal. So it has no negative impacts on plants, mammals, birds, fishes and even on the non-target insects. दूसरे insects को ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो it is very beneficial. This is especially desirable when beneficial insects are being कंजर्व। अगर हमें कुछ दूसरी स्पीशीज को कंजर्व करना है और सिर्फ एक ही स्पीशीज को रिमूव करना है जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रही थी, तो दिस इज वेरी यूजफुल एंड इट ऑल्सो हेल्पफुल इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कि हम चाहते हैं, जैसे मान लो हम किसी तरह से मान लो पोल्ट्री है या एपियरी होती है ना, दैट मीन्स हनी बीज को भी हमें प्रोड्यूस करवाना है, देन वी कैन यूज दिस ताकि हनी बीज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे और ओनली जो टारगेट है हमारा वो ही रिमूव होगा। ओके, तो दिस इज हाउ बायो कंट्रोल एजेंट्स वर्क। आप क्वेश्चंस लिखिए पेज नंबर 187 पे, यू कैन राइट 2 क्वेश्चंस। वन इज ऑन फॉर द सेकेंड पैराग्राफ जहाँ पे हमने पढ़ा था बीटल के बारे में, लेडी बर्ड वाला पैराग्राफ जो है उसमें एक क्वेश्चन लिखिए जहाँ पे बीटी के बारे में, बीटी कॉटन के बारे में, बेसिलस thuringiensis। राइट डाउन हाउ इज बीटी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो वन क्वेश्चन इज हाउ इज बीटी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड फॉर द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक लिखिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस in pest management. So you can mark this paragraph, last paragraph of this topic. ठीक है, so you will get the answer in this question, for this question. Now we'll see the topic microbes as biofertilizers. We can see biofertilizers. अब आपको पता ही है we use chemical fertilizers, है ना, chemical fertilizers use करते हैं हम for प्रॉपर या बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बिकॉज
टू मच पॉपुलेशन इज देयर, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए. सो फॉर मोर प्रोडक्शन वी नीड टू यूज़ फर्टिलाइजर्स. बट अगेन फर्टिलाइजर्स आर, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं दे आर वेरी हार्मफुल they for water pollution and for soil pollution also. So what we do, we can use bio fertilizers. अब ये bio fertilizers कैसे काम करते हैं, let us see. Now to fulfill the demand of agriculture या जो population है उसकी full demand को fulfill करने के लिए and to reduce the problem of chemicals, हम chemicals use नहीं करना चाहते हैं because they are toxic we know, so we can switch to organic farming. तो what is organic farming, कि हम किसी भी chemical को use नहीं करें, we use only bio, जैसे bio fertilizers, bio pesticides, we are using only those things. So bio fertilizers can be used as organic farming. Now what are bio fertilizers? That means some organisms which we are using to increase the fertility of soil. ठीक है, हम अपनी सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं बट वी विल नॉट यूज एनी केमिकल. तो बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं. तो एज वी नो ऑलरेडी हमने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि राइजोबियम है ना, राइजोबियम के बारे में पढ़ा. राइजोबियम इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन. क्या है ये, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द लेग्यूमिनस प्लांट्स. ठीक है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया राइजोबियम इज प्रेजेंट इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो जब लेग्यूमिनस प्लांट्स मालूम होंगे आपको, पल्सेस के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है एंड इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में दिस बैक्टीरिया हेल्प्स एंड या प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट. और भी बैक्टीरिया हैं जैसे एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर, लेकिन ये कैसे हैं, फ्री लिविंग हैं. तो रिमेंबर दिस, राइजोबियम इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन, वेयर एज फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो है एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर. तो दे ऑल्सो एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन कंटेंट. तो ये नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज करते हैं और नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट एक सोर्स है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है. देन सेकेंड एग्जाम्पल इज फंगी का. फंगी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे ऑल्सो फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा. तो माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड सम प्लांट्स. तो मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोमस. ग्लोमस एक स्पीशीज है प्लांट्स की, जीनस है जिसमें कि जिसके एसोसिएशन में ये फंगी प्रेजेंट होते हैं एंड दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड माइकोराइजा. द फंगल symbiote in these association absorb phosphorus from soil and passes to the plant. तो इस तरह से हेल्प करता है एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस. तो रूट बॉर्न पैथोजेंस जो है उनको भी रिड्यूस करेगा. इट ऑल्सो हेल्प इन टॉलरेंस, प्लांट की टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, इनको इंक्रीज करता है. सैलिनिटी मीन्स जो सॉल्टीनेस है, या ड्रॉट मीन्स अगर पानी की कमी भी होती है देन ऑल्सो plant will continue to grow properly and so it increases the plant growth. Next we'll see cyanobacteria. देखो cyanobacteria कैसे help करेगा. cyanobacteria are the autotrophic microbes, that means blue green algae कहते हैं जिसको. they are widely distributed in aquatic and terrestrial environments. तो ये बहुत आसानी से ग्रो होता है सब जगह एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया. ऐसे इन पैडी फील्ड्स, जो राइस के फील्ड्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स. तो बायो फर्टिलाइजर्स का काम करेंगे एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. तो ये सारे जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, ओवरऑल हम कह सकते हैं दे हेल्प टू रीप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स. रीप्लेनिश मीन्स जो कमी आ जाती है एज वी ग्रो क्रॉप्स,
डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो क्रॉप्स क्या है, कंटिन्यूसली सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं और उनमें क्या होता है, डेफिशिएंसी आती रहती है। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को रीप्लेनिश करने के लिए हम ये बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाती हूँ, आप इस पैराग्राफ में क्वेश्चन लिख लीजिए, पेज नंबर 188, ठीक है। यू विल गेट द आंसर इन दीज पैराग्राफ्स ओनली। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर्स। तो हाउ साइनोबैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज बायोफर्टिलाइजर्स। तो यू कैन गेट द आंसर, है ना। इसका आंसर है इट हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इन पैराग्राफ्स में आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही वन क्वेश्चन इज नेम वन सिम्बियोंट। सिम्बियोंट जैसे कि अभी हमने देखा राइजोबियम, माइकोराइजा, ये क्या है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोंट। देन नेम द टाइप ऑफ एसोसिएशन द जीनस ग्लोमस। अभी अभी हमने डिस्कस किया था ग्लोमस के बारे में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ग्लोमस का आपको ये क्वेश्चन ठीक से लिख लीजिए, नेम द टाइप ऑफ एसोसिएशन द जीनस ग्लोमस एग्जिबिट्स विद हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में किस तरह से ग्लोमस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये रहा आपका ग्लोमस का एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है ना। मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा, ठीक है। तो यू विल गेट दिस आंसर इन दिस पैराग्राफ। एंड हाउ इट हेल्प्स इन resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in the plant growth and development. So children, these were the topics of our chapter we have discussed. I hope you would have understood, and I hope you would have note down the important questions also. So this is all about in this video. So keep on revising. Take care. Thank you.